الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ایک صلوات اور پڑھتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے کمیل ایک ایسی دعا ہے جس سے تقریباً ہر شیعہ واقف ہے اور ہر کسی نے کبھی نہ کبھی پڑھی ضرور ہوتی ہے. بہت سارے تو ایسے ہیں جو روز پڑھتے ہیں یا ہر جمعرات پڑھتے ہیں، لیکن ہر شیعہ نے کبھی نہ کبھی اس دعا میں پارٹیسپیٹ ضرور کیا ہوتا ہے، دعا ضرور پڑھی ہوتی ہے. اب یہ دعا جس کے نام سے ہے، جس کے توسل سے ہمیں ملی ہے، کمیل ابن زیاد. اگر کمیل کی پرسنالٹی کو یا ان کے اگر کیریکٹر کو صرف ایک جملے میں ڈیفائن کرنا ہو تو کمیل اہل سنت کی کتابوں میں ایک بہت ضعیف روایت بیان کرنے والا، مطلب ان کی روایتوں کو اوتھینٹک نہیں کہا گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حب علی. تہذیب التہذیب اور تہذیب الاختصار میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کمیل علی کے بہت قریب تھے، اس لیے ان سے روایتیں نہیں لی جا سکتی. تو یہ کمیل کا، اگر کمیل کی زندگی کو ہم نے ایک جملے بند کرنا ہو تو ان کا ایک کمیل کا تعلق یمن سے تھا، یمن کے نخا قبیلے سے، جہاں سے مالک اشتر بھی تھے. اس لیے مشہور ہے کمیل نخعی کے نام سے بھی، کمیل ابن زیاد نخعی کے نام سے بھی مشہور ہے. کمیل اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاصدوں کو الگ الگ جگہوں پہ بھیجنا شروع کیا تو یمن میں سب سے پہلے خالد نے ولید کو بھیجا. یمن میں اس وقت دو میجر قبیلے تھے، بنو نخا اور بنو ہمدان. خالد گئے اور جا کے کوشش کی، کہا جاتا ہے کہ بہت سخت زبان میں کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کمیل کہتے ہیں کہ بنو نخا اور بنو ہمدان ساتھ اکٹھے ہوئے، باہر آئے اور پتھروں سے ان کو باہر نکال دیا، بستی سے باہر نکال دیا. جب رسول اللہ کو پتہ چلا، انہوں نے امام علی علیہ السلام کو ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسی کام کے لیے بھیجا. کمیل کہتے ہیں جب امام علی علیہ السلام ان کی بستیوں کے قریب آئے تو ان لوگوں نے وہی کام کیا جو خالد کے ساتھ کیا تھا، کھڑے ہو کے پتھر مارے. کہنے لگے ہم نے کافی دیر تک پتھر مارے لیکن امام علی علیہ السلام وہیں موجود ہے. تو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے کہا کہ اس کی بات سن کے دیکھ لو، اس کو ہم نے کافی پتھر مارے نہیں گیا، نہ جانے کیا کہنا ہے. کمیل کہتے ہیں یہ وہ جملے تھے ہمارے بڑوں کے جس نے ہمارے قبیلوں کو سدھار دیا. بنو نخا اور بنو ہمدان سے بڑے بڑے شیعوں کے نام آئے. اگر تین بڑے نام دیکھنے چاہیں، کمیل، مالک اشتر اور اویس قرنی، مطلب یہ بھی اس کے قریب قریب کے رہنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو حب علی پر چلے. امام علی علیہ السلام نے کچھ دیر بات کی اور کہا جاتا ہے بنو نخا اور بنو ہمدان کے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر لیا. اب اس کے بعد کافی دیر تک کمیل کے بارے میں تاریخ میں کچھ نہیں ملتا. کمیل کی آدھی سے زیادہ زندگی کوفے میں گزری ہے. تیسرے خلیفہ کے دور میں کمیل اور کافی سارے اور کچھ لوگ جن میں مالک اشتر تھے اور کافی سارے اور صحابہ جو اس وقت امام علی علیہ السلام کے صحابہ سمجھیں، وہ یمن چھوڑ کے کوفے کی طرف آ گئے، کیونکہ کوفہ اس وقت سینٹر بن چکا تھا علم کا بھی اور پیسے کا بھی اس وقت. تو یہ لوگ آ کے کوفے میں آباد ہو گئے. کوفے میں اس وقت گورنر تھا ولید ابن عقبہ. اب ولید ابن عقبہ کے بارے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ قرآن اس پہ آلریڈی اٹیک کر چکا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ولید ابن عقبہ کو ڈائریکٹلی کرٹیسائز کیا. اکثر ہمارے یہاں توہین رسالت پر آپ کو ہمارے بھائی ایک روایت بتاتے ہوئے سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا تھا سوائے ایک شخص. رسول اللہ نے کہا تھا یہ جہاں ملے اس کو مارو. یہ وہ روایت ہے جو عام طور پہ دی جاتی ہے اور روایت یہاں ختم کر دی جاتی ہے. یہ نہیں بتایا جاتا وہ شخص کون تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا تھا. وہ یہی ولید ابن عقبہ تھا کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں ملے سب کو امان ہے سوائے ولید ابن عقبہ کو، یہ جہاں ملے سے قتل کرو. مطلب اس کا یہ لیول تھا، لیکن اس کو گورنر بنا دیا. کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، رسول اللہ نے کرٹیسائز کیا، قرآن نے کرٹیسائز کیا، تو گورنر بننا چاہیے، تو گورنر بن گیا. اب یہ جب کوفے کا گورنر بنا اس وقت اس کو شراب کا بہت شوق، بہت شراب پیتا تھا. اس نے شراب کے نشے میں ایک دن فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا تھی اور یہاں بس نہیں کی، پیچھے مڑ کے لوگوں سے اس کے بعد بولا کہ اتنی کافی ہے اور پڑھو. کمیل اس وقت کھڑے ہوئے اور اس کو بہت کرٹیسائز کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کمیل کو اور ان کے ساتھیوں کو کوفے سے نکال دیا گیا. اب ولید ابن عقبہ نے ان کو بلایا اور اس کے بعد ان کو کوفہ بدر کر دیا اور بھیجا. کہا اس نے بولا تم شام جاؤ، وہاں پہ ایک شخص ہے وہی تمہارا علاج کر سکتا ہے. امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان گورنر. کمیل اور ان کے ساتھی وہاں گئے. جب امیر شام کو پتہ چلا، بلایا
कुमैल को और बुला के बोला कि तुमने अपने पिछले गवर्नर की साथ बदतमीजी क्यों की, इतना क्रिटिसिज्म क्यों किया? तो कुमैल ने कहा वो फासिक आदमी है, फासिकों के साथ यही होना चाहिए। इस पे माविया इब्न अबी सुफियान ने सूरह निसा की आयत की तलावत की जिसमें ये था कि अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो और उनकी इताअत करो जो उलुल अमर है। उसका तर्जुमा उस वक्त ये किया गया कि जो तुम्हें लीडर है, हम तुम्हारे लीडर हैं। उस वक्त कुमैल ने एक तारीखी जुमला कहा, हमारा एक ही लीडर है और वो मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बात नारे हैदरी और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब इस सब बातों का नतीजा ये हुआ कुमैल को शाम से भी निकाल दिया गया। इनको शाम के से निकाल के एक छोटी सी जगह हिम्स के नाम से एक जगह हम वहां पे इनको भेज दिया गया। अब वहां जब कुमैल और उनके साथी गए तो इन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से तो इनके गवर्नर हमारे साथ यही करते रहेंगे, हालांकि हम हक बात ही बोल रहे हैं, क्यों ना जाके तीसरे खलीफा से खुद शिकायत की है। तो ये 12 अफराद थे जिनमें कुमैल थे, मालिक अश्तर थे, मोहम्मद इब्न उज़ैफा थे जो उज़ैफा यानी के बेटे थे और 2-4 और लोग थे। तो ये सब लोग मिलके मदीना आए और ये लोग बहुत ज्यादा इन लोगों ने जाके वो शर्तें रखी जो शर्तें स्टार्ट में हुई जिसकी वजह से तीसरा खलीफा इवेंचुअली हट गया, खत्म हो। अब कुमैल कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली तो कहते थे मुझे लगता था कि जैसी रिस्पेक्ट शुरू के खलीफाओं को मिलती है शायद इमाम अली को भी कम से कम उतनी रिस्पेक्ट तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन कुमैल कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफत के 4 साल, कहते हैं इससे मुश्किल 4 साल मैंने जिंदगी में कभी नहीं गुजारे, जितने तकलीफ में हमने 4 साल गुजारे इतने हमने कभी नहीं गुजारे। और कुमैल कहते हैं कि जितना मजलूम में मैंने इमाम अली को देखा है इतना मैंने किसी शख्स को नहीं देखा। कहते हैं जितना क्रिटिसिज्म, जितना बुग़्ज़ लोगों के दिल में इमाम अली के लिए था इतना कभी किसी शख्स के लिए हो ही नहीं सकता। इस लेवल का बुग़्ज़ उस वक्त लोगों के दिल में मौजूद था। कुमैल इमाम के साथ कूफे की तरफ आ गए। कुमैल बयान करते हैं कि एक दिन मैं कूफे की गली से इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जा रहा था। कह रहे रात का वक्त था, इशा हो चुकी थी और फजर कुछ टाइम में होने वाली थी। कहने लगे कि मुझे एक घर से बहुत खूबसूरत कुरान की तिलावत की आवाज़ आई, बहुत खूबसूरत। मैं रुक गया, मैंने इमाम से बोला कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है। इमाम ने उसे देखा, इमाम ने कुमैल को देखा हुआ तो मैं बताता हूँ बात, अभी आप चलो तुम्हें इसके बारे में बाद में बता। कुमैल कहता है बात आई गई हो गई काफी दिन हो गए, जंग नहरवान कह रहे जंग नहरवान के बाद मैं खड़ा किसी से बात कर रहा था, मौला है मेरा हाथ पकड़ा मुझे लेके एक जगह पे गया और जहां पे खारजियों की लाशें पड़े और एक लाश की तरफ इशारा करके कहा तुम्हें वो याद रात तुम्हें याद जब तुम मेरे साथ जा रहे थे तुम्हें एक किरत बहुत पसंद आई थी, ये वो कारी है। फिर इमाम ने जुमला कहा जो हमारे लिए बहुत एक तरह से मिसले रहा है। इमाम ने कहा कि ऐसे कुरान का क्या फायदा जो मेरा मर्तबा ना समझता। सुभान अल्लाह। फिर कुमैल एक और वाकया बताते हैं। एक दिन मस्जिद बसरा में कुमैल कहते हैं हम सब बैठे थे, इशा की नमाज के बाद इमाम ने कहा कि क्यों ना मैं तुम सबको एक दुआ तालीम करूं, दुआ खिज़र, जो तुम लोगों की परेशानी में तुम लोगों की मदद करे। इमाम ने सबको दुआ पढ़ाई। कुमैल कहते हैं इमाम की दुआ खत्म हुई, लोग सब मस्जिद से बाहर चले गए। कहने से मैं और इमाम रह गए। कहने के मैं आगे गया और जाके मैंने इमाम से कहा कि आप ये दुआ मुझे सिखा दें। इमाम बहुत खुश हुए, शायद इमाम इसी का इंतजार कर रहे हैं। इमाम ने कुमैल को वो दुआ सिखाई, वही दुआ खिज़र, दुआ कुमैल। मतलब कुमैल से वो दुआ इतनी मशहूर हुई कि दुआ खिज़र हट के वो दुआ कुमैल के नाम से और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु कुमैल को इमाम अली अलैहिस्सलाम का राजों का साथी भी कहा जाता है कि इमाम के कुछ ही 8 से 10 असहाब ऐसे थे जिनको कहा जाता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के राजों के साथी थे। कुमैल भी उनमें से एक थे। नहजुल बलागा में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 147। कुमैल कहते हैं कि एक दिन मैं इमाम के साथ कहीं जा रहा था तो कब्रिस्तान आया, इमाम ने मुझे बुलाया। कह रहे कोई नहीं था, मैं और इमाम। इमाम ने मेरे सीने पे हाथ रखा और इमाम ने कहा कि कुमैल ये दिल ही हैं जो नॉलेज और ट्रूथ को रखते हैं, जहाँ पे नॉलेज और ट्रूथ रहता है। फिर इमाम ने कहा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जिनके पास ये इल्म और सच्चाई होती है, दूसरे वो जो इस इल्म और सच्चाई को तलाश करते हैं। फिर इमाम ने बड़े सख्त अल्फाज किया और कह रहे तीसरे वो गलीज लोग जो इल्म और सच्चाई के करीब तो रहते हैं, उन मक्खियों की तरह जो रोशनी के करीब रहते हैं लेकिन कभी रोशनी तक पहुंच नहीं पाती। इस तरह वो इल्म और सच्चाई की तरफ कभी पहुंच नहीं पाते या उस तक पहुंचने की कभी कोशिश नहीं करते।
कुमैल एक और मरतबा बताते हैं कि एक दफा मैं और इमाम कहीं से वापस आ रहे थे, कह रहे थे हम घोड़े पे थे, तो सब आगे चले गए, इमाम रह गए और मैं। तो कह रहे मैंने पीछे से इमाम को आवाज दी कि आप कौन हो। अब ये हदीस वैसे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो उन इमाम की उन हदीस में से है जिसके बारे में हर तरह से लोग अभी तक चर्चा कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं कि आया ये सही है कि नहीं सही। बहुत सारे शिया आलिम, आज तक किसी ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन आउटराइटली एक्सेप्ट करने वाले से 3 से 4 लोग हैं। और ये वो हदीस है जिसपे आज तक पीएचडीज हो रहे हैं। इसकी कमेंट्री आज तक वेस्टर्न प्रोफेसर्स इस हदीस की प्रॉपरली करते हैं, और उनके स्टार्ट में भी लिखा होता है कि हमें पता नहीं है हदीस सही है या गलत, लेकिन ये चीज सही है या गलत, लेकिन इससे हमें राजों का पता चलता है। बहुत बड़ी हदीस है, मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इसकी तरफ एक इशारा करता हूं। इस हदीस के बारे में अगर हमारे अहले तशय्युह में देखें तो हमें कहा हमारे पास इस हदीस की कोई मुकम्मल चेन मौजूद नहीं है। इस हदीस को हदीस हकीका कहा जाता है, हदीस ऑफ रियलिटी, या इसके अलावा कहीं कहीं पे इसको लूजली हदीस कुमैल भी कहा जाता है। इसके बारे में हमारे शिया उलमा का बयान ये, मतलब मानना ये कि इसकी हमारे पास ऑथेंटिक चेन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको रिजेक्ट कर दें। ये हदीस सबसे पहले 8th सेंचुरी में एक स्कॉलर थे सैयद हैदर, उनकी किताब में ये हदीस सबसे पहले है। और अगर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस इस हदीस को अल्लामा मजलिसी, अल्लामा बाकर मजलिसी के वालिद जनाब तकी मजलिसी ने अपनी किताब रोज़तुल बयान में दी, और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये वो हदीस है जो आम आदमी के जहन में कभी समझ ही नहीं आ सकती। तो इसके बारे में यह सोचना कि सही है या गलत, ये हमारे बस की बात ही नहीं, और वो इस बात को हमेशा इस हदीस को सही समझते। अब इस हदीस में था क्या कि कुमैल कहते हैं कि आगे इमाम जा रहे हैं, कुमैल पीछे से आवाज लगाते हैं कि आप कौन हो। इमाम पीछे मुड़ते हैं, क्या मतलब, सॉरी मतलब क्या कहना क्या चाहते हो। तो कुमैल कहते हैं मतलब आप कौन हो, सच्चाई क्या, मतलब आप हो कौन, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। इमाम बोलते हैं कि तुम्हारा सच्चाई से क्या ताल्लुक। तो कुमैल कहते हैं कि मैं आपका शागिर्द हूं। अब इसके अलग अलग तर्जुमे हुए हैं, एक तर्जुमा इसके इस तरह से भी कि मैं आपका शागिर्द हूं, क्या मेरा हक नहीं कि मैं सच्चाई जानूं। किताबों में आता है इसके बाद इमाम और कुमैल बैठ गए, और काफी देर तक इमाम ने कुमैल को राज बताया, और वो राज अल्लाह की हकानियत से शुरू है और दुनिया के बनने पे खत्म होने तक सारी की सारी बातें इमाम ने हदीस से बताई। बहुत बड़ी हदीस है, और इसका तर्जुमा मुझे उर्दू में कहीं नहीं मिला। आज तक मुझे सिर्फ उर्दू में एक ही मजलिस मिली है, अल्लामा ज़मीर अख्तर की, जिन्होंने इसका तर्जुमा किया हुआ। इसके अलावा किसी ने इसका तर्जुमा भी नहीं किया, वो बहुत मुश्किल से इस हदीस के बारे में कुछ मिलता है। तो कुमैल के बारे में ये कहा जाए कि इमाम के राजों के साथी थे, तो गलत बयान नहीं हो, और यही वो एक वजह है जिसकी वजह से अक्सर सुन्नी कुमैल से हदीसें नहीं लेते। आपको हार्डली कोई हदीस कुमैल से एसोसिएटेड मिलेगी, हालांकि कुमैल ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एटलीस्ट 30 साल गुजारे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 30 साल में कुमैल ने कुछ अहादीस बयान नहीं की। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तारीख में कुमैल का कहीं पता नहीं चलता। 40 हिजरी के बाद किसी को नहीं पता कुमैल कहाँ है, और ये एक बहुत ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन है अभी भी रिसर्चर्स के पास कि कुमैल करबला के वक्त कहाँ था, क्योंकि कुमैल की शहादत हुई है 80 से 84 हिजरी के बीच में, कोई 80 कहता है, कोई 82, कोई 84, और 40 हिजरी के बाद कुमैल का किसी को तारीख में नहीं पता। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि कुमैल अगर वाकई इमाम के इतने मुहिब थे तो कुमैल थे कहाँ, और इसका जवाब वाकई किसी के पास नहीं। कुछ स्कॉलर्स ने बस ये बात बोली है, जिसमें अमान नक्शवानी भी एक है, कि मुख्तार सकाफी को इब्ने ज़ियाद की कैद से निकालने वालों में एक शख्स कुमैल हमदानी का जिक्र आता है। कहते हैं गालिबन ये कुमैल हमदानी ही कुमैल नखई थे, दरअसल ये बात मिक्स हो गई, क्योंकि कुमैल हमदानी का इसके अलावा और कहीं तस्करा आता ही नहीं। तो कहते हैं बहुत ज्यादा चांस है कि ये वही कुमैल नखई हो, कुमैल इब्ने ज़ियाद हो, जिन्होंने इनको निकाला। कुमैल इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया तारीख में कुमैल का कोई मंजर नहीं मिलता। कुमैल वापस आते हैं सन 80 हिजरी में, जब हज्जाज बिन यूसुफ को कूफे का गवर्नर बनाया। हज्जाज बिन यूसुफ मेरे ख्याल में अहले बैत से बहुत रखने वाला सबसे बड़ा आदमी, मतलब उससे ज्यादा बहुत अहले बैत से किसी ने। हज्जाज जब कूफे का गवर्नर बना
तो उस वक्त उस दिन बकरा ईद का दिन था जिस दिन इसने पहला खिताब किया। इसने लोगों से पूछा आज क्या दिन है, लोगों ने बोला ईद कुर्बान का दिन है। तो उसने बोला क्या करते हैं, कहा हम जानवर ज़िबा करते हैं। इसने कहा आज तुम्हें कोई भी मिले जिसका नाम अली, हसन या हुसैन है, उसको ज़िबा कर दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अफजल है। फिर हज्जाज काफी जगहों पे ये तक कहता मिला कि काश मैं करबला में होता और मैं वो होता जो हुसैन का सर काटता। मतलब इस लेवल का हज्जाज के पास बहुत है। और हज्जाज सबके लिए बुरा था, अपने लोगों के लिए भी बुरा था और अहले बैत के लिए तो बहुत ही बुरा था। हज्जाज के एक फौज में एक सिपह सालार था, अब्दुल रहमान करके नाम था। हज्जाज के लिए उसने काफी जंगें लड़ी और काफी चीजें पता की। एक पॉइंट पे आकर उसने हज्जाज को बोला बस हो गई, अब आगे हमारी फौज नहीं जा सकती। लेकिन हज्जाज ने उसको बोला नहीं जाओ लड़ो। तो अब्दुल रहमान ने और उसकी फौज ने हज्जाज के खिलाफ रिवॉल्ट किया। उस वक्त खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान था, अब्दुल मालिक बिन हिशाम। अब उसने खलीफा ने उस वक्त अब्दुल रहमान को बोला कि मैं हज्जाज को हटा देता हूं, तुम लोग रिवॉल्ट नहीं करो। तो उस वक्त तक अब्दुल रहमान के सर के ऊपर से पानी जा चुका। उसने कहा नहीं, तुम्हारे खिलाफ भी रिवॉल्ट करेंगे। जब वो उम्मियों के खिलाफ खड़ा हुआ तो उसकी फौज में हमें दो इमाम के सहाबी जरूर मिले, एक सईद इब्न जुबैर और एक कुमैल इब्न ज़ियाद। कुमैल की उम्र उस वक्त लगभग 80 साल थी, लेकिन कुमैल उसकी फौज में मिलते हैं जब वो बनु उमैया के खिलाफ खड़ा हुआ। खैर फिर हज्जाज ने मुकाबला किया उसका, हज्जाज ने अब्दुल रहमान की फौज को खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो हज्जाज के पास कैदी बन के सईद इब्न जुबैर है। हज्जाज ने उनको भी शहीद कर दिया। इसके बाद हज्जाज ने बोला एक बूढ़ा अली की तारीफें करता कूफे में घूमता है, उसको ढूंढ के लाओ। तो लोग समझ गए कौन है, कुमैल इब्न ज़ियाद। वो कुमैल को लेकर गए। हज्जाज ने कुमैल को देखा, कुमैल को देख के कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं अगर तुम अली की बुराई करो, अली को छोड़ दो। उस वक्त कुमैल ने जुमला कहा कि तुम मुझे अली से बेहतर तरीका दिखाओ, अली से बेहतर को बंदा दिखाओ, मैं अली को छोड़ देता हूं। उसके बाद कहा जाता है हज्जाज ने कुमैल को शहीद कर दिया। कुमैल की शहादत की मेन वजह क्या थी? हुब्बे अली। और ये हुब्बे अली था जो करबला होने का भी मेन जवाब था। आज 7वीं मुहर्रम है और 7वीं मुहर्रम की तारीख की एक अहमियत है हम सबके लिए। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ करबला में आए। 3 मुहर्रम को लश्कर करबला में आना शुरू हुआ। 4 मुहर्रम को इमाम का खेमा हटवा दिया गया। 6 मुहर्रम को उमर इब्न साद अपना लश्कर लेके कूफे से करबला की तरफ आए और 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के सारे खानमादे में पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शदीद प्यास है। इमाम ने जब अपनी रुखसत आखिर के लिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आए तो सारी जब वसीयतें कर दी तो उसके बाद इमाम ने इमाम सज्जाद को एक और वसीयत। इमाम ने कहा सज्जाद बेटा जब तुम मदीना जाना तो हमारे चाहने वालों से कहना कि जब भी ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो। और बुजुर्ग उलमा पढ़ते हैं कि जब 12 मुहर्रम को बाइजाज़े इमामत आके इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र बनाई। जब वो कब्र बना चुके तो वो मिट्टी पे कुछ पानी छिड़का, फिर उस पर लिखा ये कब्र है प्यासे हुसैन अली। ज़ियारत नाहिया में इमाम ने भी इनको ऐसे ही याद किया, मेरा सलाम हो उस पर जिसके होंठ प्यास की शिद्दत से सूख रहे थे। और ज़ियारत में एक और चीज, एक और जुमला आता है कि मेरा सलाम हो उस पर जिसकी दाई पसली उसकी बाई पसली में जामी। आले मोहम्मद में सिर्फ 2 ही शहीद ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में पसलियां टूटी। एक की पसलियां दरो दीवार के बीच में आके मदीना बीबी फातिमा ज़हरा सलाम। इमाम सज्जाद से रिवायत है कि इमाम सज्जाद कहते हैं कि मेरी दादी पर जलता हुआ दरवाजा गिराया और कील उनकी पसलियों में जाके भी लगी और इसकी वजह से उनकी पसलियां जीते जी टूट गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अक्सर जब भी मस्जिद नबी जाते थे तो वो लंबा रास्ता लेते थे। उनसे किसी ने पूछा कि इमाम आप ये लंबा रास्ता क्यों लेते, इस गली से क्यों नहीं जाते? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा यहाँ उस शकी का घर है जिसने मेरी माँ पर जलता हुआ दरवाजा लगाया। दूसरी शहीद जिनकी पसली उनकी जिंदगी में टूटी वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं
जनाब कासिम। जनाब कासिम की उम्र करबला के वक्त 13 या 14 साल थी। सुबह आशूर जब हुई, हजरत अली अकबर ने अजान दी और उसके बाद लोग शहीद होने जाते रहे। जनाब कासिम इमाम हुसैन के आगे पीछे दौड़ते रहे कि चचा मुझे मरने की इजाजत दे, चचा मुझे मरने की इजाजत दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको हर बार कह देते कि बेटा मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दूं, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो। जनाब कासिम से रहा न गया और रिवायत में आता है कि वो खैमे के बाहर अपना सर घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगे और बेइंतहा रोए, इतना रोए कि उनकी हिचकियां बन गई। बीबी उम्मे फरवा तक जब उसकी आवाज गई तो उन्होंने जनाब कासिम को बुलाया। अब बीबी उम्मे फरवा कम से कम 12 साल से एक बेवा है। जब एक औरत बेवा होती है तो उसका टोटल मरकज उसका बेटा हो जाता है, तवज्जो का सारा मरकज उसका बेटा होता है। बीबी उम्मे फरवा से जनाब कासिम के आंसू ना देखे गए। जनाब कासिम रोए जाते हैं। बीबी उम्मे फरवा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो जनाब कासिम कहते हैं कि चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। बीबी उम्मे फरवा को उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद आई और उन्होंने जनाब कासिम को एक तावीज़ दी और कहा कि कासिम ये आपके वालिद ने मुझे दिया था और कहा था कि इस बच्चे पर जब भी कोई मुसीबत आए तो उससे कहना है तावीज़ खोल के देख लो, इसमें उसका हल मौजूद है। जनाब कासिम ने जल्दी जल्दी वो तावीज़ खोला और एकदम खुश हो गए। उसमें लिखा था कि ऐ मेरे बेटे कासिम, जब सारी दुनिया मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हो जाए और वो तन्हा हो तो तुम मेरी तरफ से उस पर कुर्बान हो जाए। जनाब कासिम ने वो खत लिया और भागते भागते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और आगे कहने लगे कि चचा अब आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिया, पहचाने कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी। उस खत को चूमा और रिवायतों में आता है कि फिर जनाब कासिम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गले लग के रोते रहे और रोते रोते गश खा के गिर गए। कुछ देर में दोनों के होश अवसान फिर बहाल और जनाब कासिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रुखसत किया। जनाब कासिम का कद उस वक्त इतना छोटा था कि हजरत अब्बास ने हर ज़रा पहना के देखा, लेकिन कोई ज़रा जनाब कासिम को पूरी ना थी। तो जनाब कासिम ने कहा कि चाचा मुझे ऐसे ही जाने दे, मैं ऐसे ही लड़ूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम को ऐसे रवाना किया कि सर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मामा बंधा और जनाब कासिम बगैर ज़रा के जंग लड़ने के लिए। जब जंग लड़ने के लिए गए तो जनाब कासिम या अली कहते जाते थे, दुश्मन पर हमला करते जाते। जनाब कासिम ने बहुत जबरदस्त जंग की। उमर साद ने एक शामी पहलवान को कहा कि तुम जाओ जाके कासिम का मुकाबला करो। उसने कहा ये बच्चा है, मैं अपने बेटे भेजूं। उसने अपना पहला बेटा भेजा। जनाब कासिम ने याद का उसको फिर नाम किया। उसने अपना दूसरा बेटा भेजा। अलगर्ज उसने अपने सारे बेटे भेजे। जनाब कासिम ने उन सबको कत्ल कर दिया। अब वो लड़ने के लिए आया। जब वो लड़ने के लिए आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो उनके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और दुआ क्या अल्लाह ये 1000 पर एक है और मेरा कासिम भूखा है और प्यासा है, इसकी मदद। जनाब कासिम ने उसको भी कत्ल किया। इस पर उमर साद फौज से बोल पड़ा कि ये हसन का बेटा है, अली का पोता है और अब्बास के हाथों का फल है, ये ऐसे नहीं शेख, इसको घेर के मारो। तो अशकिया ने जनाब कासिम को हर तरह से घेर लिया। कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े, कहीं से तलवार, और एक जालिम ने जनाब कासिम के सर पर पीछे से गुर्ज मारा। जनाब कासिम घोड़े से गिरने लगे और गिरते गिरते आवाज दी, या चचा मेरी मदद को आए, मैं घोड़े से गिर रहा हूं। रिवायात में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उकाब की तरह से जनाब कासिम की तरफ लपके, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आने लगे तो शामी फौज भी भागी। दाएं की फौज बाएं हुई
बाएं की फौज दाएं, और जब फौजें दाएं और बाएं होने लगी तो जनाब कासिम पे उनकी घोड़ों के टापों से जनाब कासिम के जिस्म के टुकड़े उतरे। ज़ियारत नाहिया में इसीलिए इमाम से मरवी के इमाम ने कहा कि मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाई पसलियां उसकी बाईं पसलियों से जा मिली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भागे भागे जब जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उनको जनाब कासिम कहीं ना मिले। बड़ी मुश्किल से इमाम हुसैन ने जनाब कासिम का लाशा जमा किया, एक गठरी बनाई और खैमों की तरफ आए। अब जब भी कोई शहीद होता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसका लाशा लाते और खैमे तक पहुंचाते। अब काफी देर हो गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे के बाहर खड़े, बीबी ज़ैनब पीछे खड़ी इंतजार कर रही कि कब कासिम का लाशा है, कब कासिम का लाशा। बीबी ने खैमे का पर्दा उठाया और इमाम हुसैन से पूछा कि भाई कासिम को नहीं लाया, कासिम का लाशा का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपनी गठरी खोली और कहा ये कासिम का लाशा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। माता में